Good morning, everyone. So I'm again back with another video, and today I'm going to teach an LR puzzle. So LR puzzle solve करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है जो मैं फॉलो करता हूँ, जिसकी वजह से puzzles बहुत ज़्यादा fast solve हो जाती है. It has worked for all my students. So before we start the video, guys, I want to ask two things of you. One, as a request, honestly, कुछ टाइम से मेरी videos because मैं भी काफी regular videos डाल रहा हूँ because work and everything, ज़्यादा नहीं views आ रहे. That is because likes और वो सब कम हो गए. As a request, if you guys seriously like my videos and if I really help you out, just please drop a like on the video and comment में कुछ भी hi, hey, thank you कुछ भी लिख दो. But just make sure that you comment and like. It really helps me reach out to more people. So that's a request from my side. And the other announcement that I want to make is that, as most of you might know, that we are having a free live demo lecture for Crack Every Test on 1st of January. So I'm going to teach you speed maths, averages, percentages, ratio, एक LR puzzle तभी भी सिखाऊंगा और एक DI का set तभी भी सिखाऊंगा. I'm going to show you exactly why Crack Every Test just got the best result in the entire country. So I'm going to show you exactly how it happened, how I'm going to help you, and the fact that why you guys should be interested in joining our course that starts on the 2nd of January. Okay? Chalo, without any further ado, let's start. Also, please, wo like yaad rakhna. It really helps. Thank you. Chalo, guys. So, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? This is a puzzle. जिसमें there are 8 in a warehouse. There are 8 boxes जिसमें अलग-अलग दवाई पड़ी है. वो लोग अलग-अलग company they belong to different companies A, B, C, D, E, F, G, H, but not in that order. Each box has a number written on it from 1 to 8, but not in that order. Number 1 is at the top, 8 is at the bottom, and others accordingly. Okay? तो let's just पहले वो लिख देते हैं, जो गारंटी वो नॉर्मल लिख देते हैं. ये हमें पता है that 1 to 8 यहीं पे रहने वाला है. हमें कौन सी कंपनी का बॉक्स है और कौन सी मेडिसिन है वो नहीं पता. So let's start with it. There are 3 boxes between A and the box which contains Combiflam. तो मैं ऐसे लिख दूंगा A and Combiflam. Now this is one thing that guys I want you to remember. बहुत स्टूडेंट्स है ना ऐसे लिख देते हैं, बट वो लोग एक चीज भूल जाते हैं. They don't put the interchangeable arrow. Now I call it the interchangeable arrow. The point is that बहुत बार ऐसे लिख के ना स्टूडेंट सोचते हैं जब जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हो दैट A Combiflam के 4 जगह ऊपर है. नहीं, नीचे भी हो सकता है. यू डोंट नो ऊपर है या नीचे है. देयर इज नो आइडिया दैट वो कहाँ पे होने वाला है. The box of company which makes Y is exactly 2 places above box B. तो box B उसके ऊपर एक, उसके ऊपर दूसरे वाले में box with medicine Y है. Partum is neither at number 1 number or nor at number 8. ये नेगेटिव पॉइंट है, बाद में मार्क कर दो. Box of company B is at an even number but not at box number 6. देखो B यहाँ नहीं हो सकता. B cannot be here because उसके ऊपर 2 जगह तो Y है. तो B can only be here और B can be here because वो 6 पे भी नहीं है. Okay? The box of paracetamol is above F. तो पैरासिटामोल F के ऊपर आएगा, कहीं तो ऊपर. देखो इमीडिएटली अबव और अबव में फर्क है. अबव मतलब ऊपर रहता है. मतलब देखो मेरा दोस्त राहुल मेरे नीचे रहता है, मेरी बिल्डिंग में मेरे नीचे रहता है. दैट मीन्स मैं अगर 10 माले पे रहता हूँ तो वो 2 माले पे भी रह सकता है, 3 माले पे भी रह सकता है, 9 माले पे भी रह सकता है. वो सिर्फ मेरे नीचे रहता है. दैट्स इट. इट इज अ डिफरेंट थिंग दैट इमीडिएटली अबव, वो मेरे जस्ट नीचे रहता है, वो मेरे इमीडिएटली अबव नीचे रहता है, इमीडिएटली नीचे रहता है. दैट मीन्स दैट ही स्टेज एग्जैक्टली ऑन द फ्लोर बिलो मी. चलो बाद में बॉक्स ऑफ पैरासिटामोल इज अबव बॉक्स F, वो लिखा. देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन B एंड D. B और D के बीच में 3 बॉक्सेस है. ये भी इंटरचेंजेबल. Y इज इमीडिएटली अबव ऑफ बॉक्स सुमो, तो यहाँ पे सुमो आ जाएगा. The box of company which makes medicine X is immediately between the box of company C and box of company D. तो D और इसके बीच में C आएगा, यहाँ पे X आएगा, यहाँ पे D आएगा. ओके वेट, यहाँ पे C एंड यहाँ पे ibucom. ओके.
एक्स इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कंपनी एफ, ये नेगेटिव पॉइंट है, बाद में रखेंगे। बॉक्स ऑफ पार्टम इज इमीडिएटली अबव बॉक्स विक्स, पार्टम के इमीडिएटली नीचे विक्स। बॉक्स ऑफ कंपनी जी इज नॉट एट नंबर 7, एफ इज अबव द बॉक्स ऑफ एच। ओके, तो एफ वाला एच के ऊपर है, कहीं तो उसके ऊपर है। ओके, एक्स इज नॉर नाइदर एक्स नॉर पैरासिटामोल इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपनी एच, ये दोनों नहीं है। अब नाउ वेयर डू वी स्टार्ट विथ, आई सजेस्ट गाइज, अब ये तरीका समझ लो प्रॉपरली। हाउ डू आई सॉल्व इट, ये मैंने 3-4 अंडरलाइन क्यों की है, व्हाई इज इट, व्हाट डिड आई से नेगेटिव पॉइंट। एवरी सम हैज 3 काइंड ऑफ पॉइंट्स, वन इज पॉजिटिव पॉइंट, वन इज रिलेटिव पॉइंट एंड वन इज नेगेटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट मतलब जिससे मैं इमीडिएटली पूरा सम भरना चालू कर सकता हूँ, टेबल। मतलब फॉर एग्जांपल, थर्ड पोजीशन पे पैरासिटामोल बैठता है, सिक्स फ्लोर पे वाई रहता है, 7th फ्लोर पे जिसकी होंडा सिटी गाड़ी है वो रहता है। इमीडिएटली थिंग्स जो तुम नंबर देख के ही वहां पे डाल सकते हो, टेबल देख के डाल सकते हो। देन देयर आर रिलेटिव पॉइंट्स। रिलेटिव पॉइंट्स मतलब जैसे ये दिया हुआ है, y इज 2 प्लेसेस अबव b, बट b का पोजीशन पता है नहीं। b का पोजीशन पता होगा तो y का पोजीशन पता चलेगा, बट वो डायरेक्टली नहीं दिया है, इनडायरेक्टली दिया है। बी और डी में तीन तीन के बीच में 3 लोग हैं, बट दोनों में से कौन कहाँ बैठता है मुझे नहीं पता। दिस इज रिलेटिव पॉइंट। एंड फाइनली इज नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट मतलब दिस वन, box which has partum is neither at number 1 nor number 8, x is not the product of company f, b को गाड़ी नहीं पसंद, c को खीर नहीं पसंद। these are negative points. The way that you solve it is, पहले तुम पॉजिटिव पॉइंट से जितना हो सके टेबल को भर लो, उसके बाद रिलेटिव पॉइंट से जितने हो सके केसेस बना लो, एंड फाइनली केसेस को मना करो, केसेस को कैंसिल आउट करो नेगेटिव पॉइंट्स को यूज करके। फाइनली तुम्हारे पास एक ही केस बचेगा एंड दैट इज द राइट सोल्यूशन। ओके, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू फॉलो। बट ये वाले सम में क्या हो रहा है, मैंने जानबूझ के एक टफ वाला सम लिया है जिसमें पॉजिटिव पॉइंट्स है ही नहीं। देयर इज नो पॉजिटिव पॉइंट देयर, सब सिर्फ रिलेटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स दिए हुए हैं। दिस मेक्स इट टफर। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें ना गाइस, ऑलवेज स्टार्ट विद द थिंग जिसके बारे में तुम्हें सबसे ज्यादा चीजें दी है। तो यहाँ पे तुम्हें बाकी किसी के बारे में 1-2 चीज नहीं दी है, सिर्फ डी के बारे में दिया हुआ है, सम यूजेबल पॉइंट्स। बी और डी के बीच में 3 लोग हैं, एंड बी के ऊपर 2 लोग हैं एटलीस्ट, एंड सी और डी के बीच में एक पर्सन है। ये कौन से तरीके में आ सकता है, रुको मैं पार्टम विथ को यहाँ बाजू में लिख देता हूँ। नाउ दिस कैन आइदर बी y डैश b डैश c डैश d, और उल्टा b डैश y डैश d डैश c। ये 2 तरीके से हो सकता है। इट कैन बी एनी वन। नाउ मेनी टाइम स्टूडेंट्स द बिगेस्ट मिस्टेक दैट दे डू, बोलते हैं एलआर पजल कम सॉल्व होता है या फिर स्लो सॉल्व होता है या फिर केसेस बनते हैं तब सॉल्व नहीं होता, बिकॉज वो लोग दोनों केसेस साथ में सॉल्व करने की ट्राई करते हैं या फिर सोचते रहते हैं दैट मैं कौन सा सॉल्व करूँ, क्या पकड़ू, कौन सा केस से स्टार्ट करूँ, बिकॉज दे आर वरीड दैट टाइम वेस्ट होगा। पर वो लोग वो नहीं समझते यही करने में उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। ये प्रॉपरली तुम एक केस पकड़ नहीं पा रहे हो उसकी वजह से। आई सजेस्ट कोई भी एक केस लेके आगे बढ़ो, फर्क नहीं पड़ता। यू कैन टेक एनी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाओगे राइट, बट यू विल नो फॉर श्योर देयर इज अ 50% चांस ये नहीं तो ये। तुम्हारा एक गया तो तुम्हें पता है दैट दूसरा वाला पक्का सही है, वो गलत नहीं हो सकता। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द राइट वन। यहाँ पे बी 4 पे हो सकता है, तो बी, यहाँ पे वाई, यहाँ पे सुमो, वाई, यहाँ पे सुमो, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। ओके, डी का आईबू है एंड सी के नीचे एक्स है, ये इतना मुझे पता चल गया। चलो अब क्या कर सकते हैं, अब समझो एफ के ऊपर पैरासिटामोल है, एफ के नीचे एच है, एच को एक्स नहीं पसंद, एच को एक्स नहीं पसंद तो एच यहां तो नहीं आ सकता, तो आई कैन टेक एच हियर। एच के, एफ के ऊपर पैरासिटामोल है तो एफ यहां नहीं तो यहां आ सकता है, सो एफ कैन बी हियर और हियर, एच कैन बी हियर ओनली बिकॉज एच को एक्स नहीं पसंद, सो एफ कैन बी हियर और हियर। मुझे नहीं पता एक्स का कौन सा है, सॉरी एफ का कौन सा है मुझे नहीं पता। यहाँ पे एच, एफ, एफ,
बाद में वी नो दैट जी और ए के बारे में कुछ दिया हुआ है, सॉरी ए के बारे में दिया हुआ है, जी के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। ए की 3 जगह छोड़ के कॉम्बीफ्लाम है, मतलब 3 जगह बीच में और कॉम्बीफ्लाम। वेयर कैन ए बी? देखो कॉम्बीफ्लाम सिर्फ ये जगह पे हो सकता है। अब समझो गाइस, यहाँ पे अगर यहाँ पे कॉम्बीफ्लाम ले लूं तो 1 2 3 यहाँ पे ए आएगा, बट वो तो पॉसिबल नहीं है, तो कॉम्बीफ्लाम यहाँ नहीं आएगा। कॉम्बीफ्लाम इन 3 में से एक जगह पे होगा, और इन 3 में से एक जगह पे क्या बोलते हैं, पार्टम एंड विक्स है। सो बाय डिफॉल्ट पैरासिटामोल यहाँ आ गया। नाउ कॉम्बीफ्लाम अगर मैं यहाँ ले लूं तो ए के लिए जगह बचेगा 1 2 3, नहीं बचता है। अगर मैं कॉम्बीफ्लाम को यहाँ ले लूं तो ए के लिए जगह बचेगा 1 2 3, बचता है। बट अगर मैं कॉम्बीफ्लाम यहाँ ले लूं तो पार्टम और विक्स के लिए कुछ नहीं बचेगा ना, देयर इज नो प्लेस, बिकॉज वो एक दूसरे के इमीडिएटली ऊपर नीचे है। सो बाय डिफॉल्ट कॉम्बीफ्लाम यहाँ आएगा एंड ए आ जाएगा 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा ए, तो यहाँ पे आ गया एफ। नाउ यहाँ पे जी को एफ एक्स इज नॉट द कंपनी, जी इज नॉट एट नंबर 7, जी यहाँ पे नहीं हो सकता, तो जी सिर्फ यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे पार्टम एंड यहाँ पे विक्स। एंड बचा हुआ कौन सा है, ए बी सी डी ई, यहाँ पे आ गया ई। एंड ये अपना पूरा सोल्यूशन रेडी हो गया। वी सॉल्व इट यूजिंग ओनली वन केस। हमने 50% प्रोबेबिलिटी पे उठाया, अगर गलत भी होते तो ज्यादा टाइम नहीं बिगड़ता था। यू मस्ट हैव वेस्टेड जस्ट 1 मिनट एक्स्ट्रा अगर तुम गलत वाला केस भी उठा लेते थे। द होल पॉइंट हियर, द बिगेस्ट थिंग हियर इन दिस सम वाज, ये 2 कंडीशंस सेट करनी थी। अगर वो सेट हो जाती तो तुम्हारा सॉल्व हो जाता। दैट इज बी डैश वाई डैश डी डैश सी। ये और ये 2 कंडीशंस अगर तुम प्रॉपरली सेट करना सीख गए तो तुम्हारा पूरा सम फटफट सॉल्व हो जाएगा। ओके चल, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। अभी मैंने थोड़ा इधर प्रॉपरली लिखा हुआ है, क्वेश्चंस पे जाते हैं। विच कंपनीज बॉक्स इज एट द टॉप? कंपनी जी। Which company's box is immediately between the box of Ibicom and Combiflam? Company E, option 1. Which box of medicine is immediately below the box of Vicks, Combiflam? Which company produces Partum medicine? Company B. What is the name of the medicine which comes from company A? A से Y आता है. Okay? So that does it. तो गाइस अब मैं तुम्हें एक सम दूंगा, अगेन कल की तरह मैं तुम्हें होमवर्क सम दूंगा, वो सम सॉल्व करो। थोड़े क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे बताओ। टेल मी इन द ऑप्शंस व्हाट आर द आंसर टू द क्वेश्चंस। Before that, I would just like to inform you, again, we are having a live seminar. I would love to have you there. There are already about 580 जितने registrations for the seminar. मतलब हमारी 500 की कैपेसिटी है, ऑलरेडी 580 रजिस्ट्रेशन है, पर सब आते नहीं है। सो इफ यू रियली वांट टू जॉइन इट, ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप मैं बना रहा हूँ सैटरडे को, सो यू गाइज शुड रजिस्टर फॉर द सेमिनार। सो लास्ट टाइम भी हम ओवर बुक्ड थे, कुछ लोगों को नहीं मिला था। इफ यू आर रजिस्टरिंग देन प्लीज जल्दी आ जाना, अदरवाइज वो सीट नहीं बचेगी। चल गाइज, दिस इज द सम। रुको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। या दिस इज द सम। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये अपने आप से सॉल्व करो, मैं इसके क्वेश्चंस भी दूंगा तुम्हें सॉल्व करने के लिए, बट टेक अ स्क्रीनशॉट। आई वेट फॉर 5 सेकेंड्स। चल, ये वीडियो पॉज करके ये वाला सम प्रॉपरली सॉल्व करो एंड देन गो ऑन टू द क्वेश्चंस। एंड मेक श्योर दैट तुम टाइमर लगाते हो कि तुम्हें पता चले ये सम में तुम्हें कितना टाइम लगा। ये जो ऊपर वाला सम है वो जब मैं खुद से सॉल्व कर रहा था तब मुझे वो सम सॉल्व करने में अप्रोक्स 4.5 मिनट जितना खुद से लगा था व्हेन आई सॉल्व इट माई सेल्फ। चलो ये वाला सम देखो तुम्हें कितना टाइम लगता है। टेल मी कितना टाइम लगता है एंड टेल मी द आंसर टू दीज 6 क्वेश्चंस। ये 6 क्वेश्चंस का आंसर मुझे बताओ। ओके, वेट हियर, आंसर्स टाइप करो चैट में एंड टेल मी हाउ मच टाइम यू टुक। चलो, I hope this video was helpful. Again, request, please just drop a like and please comment anything that you want to comment. And yeah, we have the seminar coming in. So I hope to see you guys there. I wish this video was helpful. If at all it was helpful, please tell me how it was. And तुम्हें अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे कमेंट्स में बता दो. Okay? Bye everyone.